everyone, welcome back to my channel. So in this video we'll start with the unit 3 of assessment and learning. Now in unit 3 you will study about different methods of assessment like open book exam, question bank, tests which are not tested for marks, the stages of assessment, what is semester system, grading system और credit based system, ये सब क्या होता है, ये सब इस यूनिट में समझेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट topic of this unit, that is semester system. Before beginning, I would like to request you, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe first and let's begin the video. Now what is the meaning of semester system? Semester system सबसे पहले derive होता है एक Latin word से 6 monthly, मतलब 6 month का एक system. सो पूरा एकेडमिक ईयर जो होता है आपका 12 मंथ्स का, इफ़ यू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो 6 मंथ का एक पार्ट, 6 मंथ का सेकेंड पार्ट. सो दीज आर योर 2 academic terms. So when you divide your whole academic year into 2 equal parts, you get 2 semesters. Now it is derived from a Latin word 6 monthly. It means either या तो ये वाला academic term या फिर second part वाला academic term. Now generally excluding the summer or the January terms if any. So usually जो semester system होता है ये summer terms या फिर January terms को include नहीं करते हैं. Now कितना लंबा हो सकता है semester का term? It can be 12 weeks to 20 weeks long. months में 3 to 5 months long हो सकता है. The concept of a semester system. Now we will understand कि semester system का basic concept क्या है. So first point is that कि quantity of the content, जो भी content पढ़ाना है उसका whole quantity is divided proportionately according to the length of the semester. So जितना पढ़ाना है उसको हम proportionately सारे teachers divide करते हैं as per the time and duration of availability of lectures in a particular semester. So सब कुछ pre-planned होता है semester में. The second thing, the type of evaluation. So semester system इस कौन से type of evaluation में आती है? It is a continuous assessment. क्योंकि पूरे ईयर में एक बार नहीं, ये पूरे ईयर में 2 बार हो रहा है और periodical test भी होते रहते हैं, तो इसीलिए इसको continuous assessment में रखते हैं. Now the third point is periodical test. So सेम चीज़ जो अभी कही है कि पीरियोडिकल टेस्ट होते रहते हैं जो आपको फाइनल सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं. अब सेमेस्टर में आपको 2 फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्प मिल जाती है. आप सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स देते हो, आप पढ़ाई करते हो और फिर आप फाइनली जब फाइनल एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये इशू नहीं रहता कि आपने एंड टाइम पे पढ़ाई करी है, तो वो इशू नहीं रहता. इसीलिए इट ऑल्सो हेल्प्स दी स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर वेल फॉर दी एग्ज़ाम्स. Now the last point in this is eliminating the fear of unknown. When the students are well prepared for an exam, they are well prepared because क्योंकि वो पूरे ईयर में पढ़ते हुए आ रहे हैं. So इसकी वजह से when they know कि उनको क्या आने वाला है, क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टॉपिक्स रहे होंगे, क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है, जब ये पता है तो वो फियर ऑफ अननोन स्टूडेंट्स में से चला जाता है. Okay, starting with the importance of semester system. The first importance is it reduces the burden of the students. So burden कम हो जाता है कैसे? Because the syllabus is divided into 2 academic terms. 2 terms में divided होता है syllabus. So learn करना easy है. Just imagine learning the entire syllabus in 6 months or learning the entire syllabus in 2 equal parts in 6 months plus 6 months. That is much easier. The second point is the semester system is a proactive system. एक तरह से ये proactive system क्यों है? Proactive का मतलब है ये engagement ले आता है स्टूडेंट्स के भी और टीचर के भी. सो फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों को एंगेज होना होता है इस सिस्टम के अंदर. थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि जो एनुअल सिस्टम होता था, जो पहले एक एनुअल सिस्टम टर्म चलती थी, सेमेस्टर तो अब नया आया है. सो एनुअल सिस्टम के टाइम पे स्टूडेंट फ्री रहता था एंड ही यूज टू स्टडी ओनली एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम. जब एग्ज़ाम उसको देना है
वो तब पढ़ता था। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम में अब ऐसा नहीं है, अब वो इतना फ्री ऑफ माइंड नहीं रहता, अब उसको पढ़ना पड़ता है ताकि वो अपने फाइनल टर्म्स में अच्छा प्रिपेयर भी रिजल्ट ला सके। द नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स थ्रू, देखो, इट इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द एकेडमिक टर्म। ये स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बांध के रखता है पूरे एकेडमिक टर्म में। सो ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ एंड टाइम पे ही पढ़ना है। तो एक तरह से अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ते जाते हैं तो उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, दे गेट गुड मार्क्स एज वेल। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन एंड टीचर्स। सो एक इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर और द चिल्ड्रन ये भी बढ़ती है, इंटरेक्शन बढ़ती है स्टूडेंट्स की टीचर्स की। लास्ट पॉइंट है कि कीपिंग द स्टूडेंट्स इन टच विद द बुक्स द होल ईयर। सो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को बुक्स के साथ, पढ़ाई के साथ बांधे रखता है फॉर द इंटायर ईयर। नाउ मूविंग ऑन टू द एडवांटेजेस, जल्दी से करते हैं। एडवांटेजेस आर सिमिलर टू इम्पोर्टेंस ओनली। आप कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंस के भी लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। एडवांटेजेस में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट इज इट डिक्रीजेस द लोड ऑन दी स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले जो बर्डन है, जो लोड होता है स्टूडेंट्स पे, वो कम कर देता है सेमेस्टर सिस्टम। द सेकेंड इज अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी का मतलब है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की फर्स्ट सेमेस्टर में किसी टॉपिक्स में बैक आई हुई है, किसी सब्जेक्ट में बैक आई हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो सेमेस्टर में, मतलब उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पास नहीं करेंगे। ही कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेमेस्टर, लेकिन उसको वो अपनी बैक भी सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ते हुए क्लियर कर सकता है। तो एक ये अपवर्ड मोबिलिटी रहती है, कोई रुकता नहीं है पीछे, हमेशा एक ऊपर ही ये सिस्टम लेके जाता है चाइल्ड को। थर्ड इज़ लर्न एट देयर ओन पेस। इसमें स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है कि दे कैन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस, और उनकी इसमें स्टडी हैबिट्स भी इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्टूडेंट इज़ बिजी द एंटायर ईयर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जो एक स्टूडेंट है जो एनुअल सिस्टम में फ्री ऑफ माइंड रहता था कि हाँ मैं तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ लूँगा और मैं मार्क्स ले आऊँगा, तो वो वाली मेंटालिटी इस सिस्टम में नहीं रहती। नाउ सेमेस्टर सिस्टम में अब स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा ताकि वो अपना फाइनल टर्म क्लियर कर सके, क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिकली टेस्ट होते रहते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। सो सेमेस्टर सिस्टम एक तरह से मोस्ट फेवरेबल सिस्टम रहता है हर इंस्टीट्यूशन में। क्यों रहता है? क्योंकि ये एक कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ ये फाइनल एग्ज़ाम्स 2 बार ही लेता है, तो एक रेगुलरली वही बात है, इवैल्यूएशन इसमें चलती रहती है। Now last point is it gives the greater freedom and scope in designing and delivering the lessons. So ये point है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टीचर्स को इसमें ज़्यादा स्कोप और एक ज़्यादा फ्रीडम मिलती है कि वो अपने लेसन प्लान्स को ढंग से डिज़ाइन कर सकें और उसको अट्रैक्टिवली प्रेजेंट भी कर सकें। नाउ से हमने इसके बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स अभी डिस्कस कर लिए हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, बट इट हैज़ कम अप विद सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपसे फटाफट डिस्कस कर लेती हूँ। द फर्स्ट इज़ द इनएडिक्वेसी ऑफ सेमेस्टर। इट स्टार्ट्स इन जुलाई बट एडमिशन गोज़ ऑन टिल अगस्त। सो इनएडिक्वेसी कहती है कि सेमेस्टर सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में स्टार्ट हो जाता है यूजुअली, लेकिन जो एडमिशन्स हैं दे गो ऑन टिल अगस्त। सो जो अगस्त में आएगा वो जुलाई वाला पार्ट जो पढ़ाया होगा उसके पास वो नहीं होगा, तो एक टीचर्स के लिए इनकन्वीनियंस हो गई कि उनको सफिशेंट टाइम नहीं मिलता अपना कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि वो अपना बैकलॉग, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाना पड़ेगा बैकलॉग, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी आगे का करवाना होगा। सो टीचर्स डू नॉट गेट इनफ टाइम। एंड सेकेंड, द स्टूडेंट्स जो लेट आ रहे हैं उनको भी एडिक्वेट टाइम नहीं मिलता
to give the to gain good marks in the first semester, क्योंकि वो लेट आते हैं. The next is the semester system implies more revaluation, that means timely results देने पड़ेंगे. So this increases the workload on the education department, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में आपको ज़्यादा बार एग्ज़ाम लेना है तो आपको ज़्यादा बार इवैल्यूएशन करनी है, दैट मीन्स मतलब वर्कलोड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है वो इंक्रीज़ हो गया. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ इट डिक्रीजेज द को करिकुलर एक्टिविटीज़. नाउ सेमेस्टर सिस्टम पूरी तरह से ना पढ़ाई के ऊपर इतना बेस्ड है और उसको इतना पढ़ाई के ऊपर ऐसे डिज़ाइन करा हुआ है कि इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ की कोई जगह है नहीं, ज़ीरो. सो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो यूजुअली दे फील वेरी लो, बिकॉज उनको वो चांस नहीं मिल पाता. इतना सेमेस्टर सिस्टम में को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, प्लान्ड ही नहीं होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ नो एक्स्ट्रा क्लासेस बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ टाइम. सेमेस्टर सिस्टम बहुत टाइट सिस्टम होता है, सब कुछ प्री प्लान होने के बाद भी बहुत टाइट होता है, और इसमें आप स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास नहीं प्रोवाइड कर सकते. अगर सपोज़ कुछ रह भी गया, कुछ आपका प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया, स्टिल आप किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर सकते. देयर इज स्कार्सिटी ऑफ टाइम. द नेक्स्ट इज स्टूडेंट कन्फाइंड ओनली टू देयर कोर्स कंटेंट. अब इस सिस्टम में एक स्टूडेंट ना करिकुलर एक्टिविटी कर सकता है और वो कहाँ एक कोर्स के कंटेंट में ही बंध के रह जाता है. दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. नाउ नेक्स्ट इज़ अ सेमेस्टर सिस्टम इज़ कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव. सो सेमेस्टर सिस्टम है तो इसके एडवांटेजेस तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, हम डिसएडवांटेजेस भी बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल ये सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ the courses are short and the students are confined to the course only. That is the same point which we discussed before. Now last point is the knowledge of the student is restricted. जो एक स्टूडेंट का नॉलेज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये सिस्टम. नाउ टाइम नहीं है इसमें, लैक ऑफ टाइम है, स्कार्सिटी है. सो कुछ चैप्टर्स तो बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं इसमें. सो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स को, एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू भी डिसएडवांटेजेस कुछ हैं, और एजुकेशनल डिपार्टमेंट को भी कुछ डिसएडवांटेजेस इसमें रहते हैं. So I guess this much is enough for today's video. In the next video we will pick up one more good topic from this unit 3, and I'll try to finish up the unit 3 in 3 to 4 lectures. And thank you so much for watching my video, and please hit like and subscribe to my channel if you like my videos. Thank you so much.